Good morning, students. Today we are going to see HCF and LCM. What is HCF? Highest common factor, and LCM is lowest common factor. So our chapter 3, playing with numbers. Topic is playing with number. In this we will discuss HCF and LCM. HCF highest common factor, LCM is lowest common factor. What we do in highest common factor, we find what is the highest common factor in the given between number. And in the case of LCM, what we see what is the lowest common factors will be of the given number. So let us proceed to the exercise. We will solve and so first exercise 3.6, it is related to the SCF. Find the SCF of the following number. Exercise 3.6. Now see question number A. It is 1848. B. I am writing all the questions. 30, 42. C. 18, 16. D. 27, 63. First of all, we will do prime factorization. The prime factorization of 18 will be 2 into 3 into 3. This is the prime factorization of 18. Now we will do prime factorization of 48. Yes, this is the prime factorization of 48. 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16 into 3. 48. Now see what is the common number. 1, 2 is common and 1, 3 is common. So HC of 18 and 48 is 2 into 3, that is 6. क्या होगा HCF? 6. अब 30 और 42 का देखते हैं. The prime factorization of 30 will be 2 into 3 into 5. Now 42, 2 into 3 into 7. प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग कैसे कर रहे हैं? जैसे 42 को सबसे पहले 22 से डिवाइड किए, 21 आ गया, फिर 3 से डिवाइड किए 7, 2 into 3 into 7, 2 into 3 into 7. This is. Now see what are the number commons. 2 is common, 3 is common. So HCF of 30 and 42 is 2 into 3, that is 6. क्या होगा? 6 होगा. अब नेक्स्ट देखते हैं हम 18 और 60 का. So prime factorization of 18 will be, we have already written, that is 2 multiply 3 multiply 3. Now what is the prime factorization of 60? 2 multiply 2 multiply 3 multiply
5. Yes. Now see what is the common. 2, 3. So HCF of 18 and 60 is 2 into 3, that is 60. Now coming to this, what is the prime factorization of 27? 3 into 3 into 3. And what is the prime factorization of 63? Is 3 into 3 into 7. What is common? 2 times 3. So HCF of 27 and 63 is 3 into 3, that is 9. So what we have done, we have done the prime factorization. We have find the what is the common, यानी हम जब प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे गिवन नंबर का, उसका उसमें हम लोग देखेंगे कि कौन से नंबर कॉमन है. जितने नंबर कॉमन आएंगे उसका हम लोग क्या कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वो नंबर क्या हो जाएगा, HCF ऑफ द गिवन नंबर. लेट अस सी द मोर क्वेश्चंस गिवन in the exercise. E 36 84 F 34 102 Z 17 105 and 175. Again we have these three numbers and we have to find the LCM. अब 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. क्या आएगा, 2 18 2 9 3 3. So what will be the prime factorization of 36? 2 into 2 into 3 into 3. This will be the prime factorization of 36. Now we will see the prime factorization of 84. 2 42 21 3 7. So prime factorization of 84 is 2 into 2 into 3 into 7. Now what are the number common? See, this 2 is common, 2 is common, 3 3. So HCF of 36 and 84 is 2 into 2 into 3, that is 12. Now what is the prime factorization of 34? 2 into 17.
So 34 is equals to 2 into 17. We have written. Now, what will be the prime factorization of 102? 102 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? अब हम देखते हैं. 251, 3, 17. 70 is a prime factors. So 102 का हो जाएगा 2 into 3 into 17. नंबर कौन से कॉमन है? 2 कॉमन है, 17 कॉमन है. सो HCF of 34 and 102 is 2 into 17, that is 34. क्या हो जाएगा? 34 हो जाएगा. अब आते हैं हम इसका 70 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2, 35, 5, 7. तो 70 का क्या हो गया? 2 into 5 into 7. ये हो गया. अब उसका हम लोग किसका लिखेंगे? 105 का. 5, 35 नहीं, 3 से जाएगा. क्या आएगा? 3 से क्या आएगा? 35. उसका 5 से करेंगे 7. क्या आ जाएगा? 105 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 into 5 into 7. अब किसका देखते हैं? 175 का. 5 से 3, 5, 5, 7. 175 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया? 5 into 5 into 7. कॉमन क्या है? 7 सभी में कॉमन है. 5 कॉमन है. 2, 3, 5 नहीं है. सो HCF of 70, 105 and 175 is क्या होगा? 5 into 7, that is 35. तो हमने इसमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने का भी तरीका दिखा दिया और HCF भी फाइंड कर दिए हैं. There are 3 more question remaining of question number 1. Let us see. HIJ 91, 112, 49. I 18, 54, 81. G 12, 45, 75. Now see what will be the prime factorization of 91? That will be 7 into 30. इससे हम डिवाइड कर 91 किससे डिविजिबल है?
7 city visible है और 13 के travel. So 91 equals to 3 into 7 into 13. उसके बाद आ जाता है हमारा 112. 2 56 2 क्या आ जाएगा हमारा 28 2 14 2 7. सो 112 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7. 49 का 7 इंटू 7. So what is the common? Common is 7 7 7. So HCF of 91 112 and 49 is 7. अब आते हैं आई पे. 18 का क्या हो जाएगा 18 का होगा प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 इंटू 3. क्या होगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. 54 का देखते हैं 2 27 3 9 3 3. 54 का हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. 81 का क्या हो जाएगा 3 27 3 9 3 3. तो 81 का हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. कॉमन कौन से होंगे 2 times 3. So HCF of 18 54 and 81 is 3 into 3, that is 9. अब आते हैं लास्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 का. 12 का हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 3. 45 का होगा 3 इंटू 3 इंटू 5. 75 का होगा 3 इंटू 5 इंटू 5. कॉमन क्या है 3 3 3. So HCF of 12 45 and 75 is 3. One thing you remember, when you have done prime factorization of given number and there is no common number, in that case the HCF will be 1. मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जब हमारे पास नंबर गिवन है और कुछ केस में क्या हो सकता है कि कोई भी कॉमन नंबर नहीं होगा, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा, उस केस में हमारा HCF क्या होगा 1, बिकॉज 1 इज द फैक्टर ऑफ ईच एंड एवरी नंबर.
Now moving to question number 2. What is the SCF of two consecutive? Question is, what is the SCF of two consecutive numbers, even numbers, odd numbers? टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का एचसीएफ क्या होगा, इवन नंबर्स का क्या होगा और ऑड नंबर्स का क्या होगा। सो देखते हैं टू का सॉल्यूशन। ए पहला बोला गया नंबर्स, क्या बोला गया नंबर्स, हम ले लेते हैं 4 and 5, क्या हो जाएगा 4 का क्या होगा 2 into 2, 5 का क्या होगा 5। तो मैंने अभी जस्ट बोला था जिस केस में नंबर कॉमन नहीं होगा मल्टीप्लाई 1 कर देते हैं, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ विल बी एचसीएफ ऑफ consecutive नंबर इज 1। दूसरा है इवन नंबर, इवन नंबर तो हम नंबर ले लेते हैं 4 and 6, क्या ले लेते हैं 4 and 6। 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 2 into 2, 6 का 2 into 3, कॉमन क्या हो गया 2। तो एचसीएफ ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव एचसीएफ विल बी 2, क्या होगा एचसीएफ, एचसीएफ विल बी 2। अब तीसरा क्या है ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स, तो ऑड नंबर्स में हम लोग लेते हैं 3 and 5, 3 and 5। 3 क्या होगा 3 multiply 1, 5 क्या होगा 5 multiply 1, तो HCF will be 1। क्वेश्चन क्या पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 2 में कि व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर। टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर पहला ये है, टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एचसीएफ क्या होगा 1, टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का क्या होगा 2, और टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का क्या होगा एचसीएफ 1। Moving to question number 3. What is question number 3? See, HCF of two co-prime number 4 and 50 was found by factorization 4 into 20. क्या बोला गया है कि टू को प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या बोला गया है 4, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है 4 और 15, तो क्या है कि 4 है तो 2 into 2, 15 का बोला गया है 3 into 5। क्वेश्चन क्या बोला गया कि एचसीएफ ऑफ टू को प्राइम नंबर 4 and 15 वाज फॉलोज बाय फैक्टराइजेशन, किसके थ्रू फाइंड किया गया फैक्टराइजेशन। 4 का क्या है 2 into 2 एंड 15 का क्या है 3, सिंस देयर इज नो कॉमन प्राइम फैक्टर, क्या बोला गया कोई कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं, हम लोग देख रहे हैं 4 का क्या है 2 into 2, 15 का क्या है 3 into 5, कोई कॉमन फैक्टर क्या होगा इसका एचसीएफ 0 होगा। इज दिस आंसर करेक्ट, इफ नॉट व्हाट इज द करेक्ट आंसर। हमने अभी थोड़ा देर पहले ही फाइंड किया था, हमने थोड़ा देर पहले ही डिस्कस किया था कि जब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है उस केस में क्या होगा 1 होगा कॉमन फैक्टर, उसमें क्या होगा यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई 1 लिख देंगे 1 मल्टीप्लाई लिख देंगे, इसमें नो
HCF will be 1, क्या होगा? नो। और HCF 0 के नहीं होगा, क्या होगा? 1. So what we have done today, we have seen mainly HCF, and another name of HCF is GCD, that is known as greatest common divisor. So today in your homework, complete exercise 3.6. Thank you and have a nice day.